اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وردان کے سالار قبقلار نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ وردان نے کہا، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ قبقلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ ایک سالار نے کہا، اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا، مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے قتل۔ وردان نے کہا، کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سالار نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ وردان نے کہا، بہت اچھی تجویز ہے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، داؤد، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپاہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا۔ وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ داؤد نے کہا، وردان، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا۔ وردان نے کہا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ داؤد نے کہا، اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپاہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کروا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتاؤ ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दाऊद को देखे जा रहे थे। दाऊद का ज़मीर मुजरिमाना था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरों की ताब न ला सका। मौरिख लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर एक या दो जख्मों के निशान थे, जिनसे उनका चेहरा बिगड़ा तो नहीं था, लेकिन जख्मों के निशानात का अपना एक तासुर था जो दाऊद के लिए गालिबन दहशतनाक बन गया। दाऊद बौखलाए हुए लहजे में बोला, ए अरबी सालार, मैं फौजी नहीं हूँ, एलची हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके जरा और करीब आकर कहा, सच बोल दाऊद, तू एक झूठ बोल चुका है, अब सच बोल और अपनी जान सलामत ले जा। दाऊद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा छोटा सा आदमी लगता था, हालांकि कद उसका भी कुछ कम न था। दाऊद ने अपने झूठ को दोहराया, बोला, ए अरबी सालार, मैं सुलह का पैगाम लेकर आया हूँ और इसमें कोई धोखा नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर तू धोखा देने आया है तो मेरी बात सुन ले। जितनी मक्कारी और अय्यारी हम लोगों में है उतनी तुम में नहीं। मकरो फरेब में हमें कोई मात नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे सिपा सालार वरदान ने कोई फरेबकारी सोची है तो उसका नतीजा ये होगा कि रूमियों की तबाही का अमल उससे तेज हो जाएगा जितना मैंने सोचा है। और अगर उसने सच्ची नीयत से सुलह का पैगाम भेजा है तो जाओ उसे कहो कि जिजिया अदा करे, फिर हम सुलह कर लेंगे। दाऊद में इतनी सी भी हिम्मत न थी कि वो कोई और बात करता। आदाब बजा लाकर चल पड़ा। खेमे के दरवाजे में जाकर पीछे देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें अभी तक उसे घूर रही थीं। दाऊद ने मुंह फेर लिया लेकिन चला नहीं, वहीं खड़ा रहा। वो महसूस कर रहा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें उसकी खोपड़ी में से गुजरकर उसकी आंखों में दाखिल हो रही हैं। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ घूमा और अचानक इस तरह तेज कदम उठाए जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर झपटने लगा। दाऊद ने शिकस्त खूर्दा आवाज में कहा, इब्ने वलीद, मैं तुझे धोखा देने आया था। उसने वरदान की साजिश पूरी की पूरी बयान कर दी और ये भी बता दिया कि कल सुबह वरदान के 10 आदमी किस जगह घात में होंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद से पूछा, क्या तू बता सकता है कि तू जाते जाते रुक क्यों गया है और तूने ये सच क्यों बोला? दाऊद ने कहा, सच का सिला लेने के लिए मुझे नकद इनाम की जरूरत नहीं है। जिस फौज के सालार की नजरें इंसानों के जिस्मों में बर्छी की तरह उतर जाने वाली हों, उस फौज को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ऐ अरबी सालार, मेरा तजुर्बा और मेरी अक्ल बताती है कि फतह तेरी होगी। मैं सिर्फ इतना सिला मांगता हूँ कि जब तू हमारी बस्तियों पर कब्जा कर ले तो मेरे खानदान पर रहम करना और उनकी इज्जत का और उनकी जानो माल का ख्याल रखना। उसने बताया कि उसका खानदान कौन सी बस्ती में रहता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद को रुखसत कर दिया। दाऊद ने वापस जाकर वरदान को बताया कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम देकर आ गया है और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर वक्त पर अकेले आएंगे। दाऊद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत से ऐसा तासुर लिया था कि उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि रूमी हारेंगे और फतह मुसलमानों की होगी। उसने अपने फौज के सालार आला से झूठ बोला कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर वक्त पर आ जाएंगे। सुबह तुलू हुई। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रूमी सालार वरदान की साजिश बताई। फिर कहा कि वो 10 रूमी मुझे कत्ल करने के लिए घात में पहुंच चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि अकेला जाकर उन 10 आदमियों को खत्म कर दूं। बड़ा अच्छा शिकार है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, ये तेरा काम नहीं। 10 आदमियों के मुकाबले में तू कत्ल या जख्मी हो सकता है। तू बड़ा कीमती आदमी है। यूं कर 10 ऐसे आदमी चुन ले जो बहुत ही बहादुर हों, उन्हें वो जगह बताकर भेज दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 मुजाहिदीन मुंतखब किए और उन्हें बताया कि कहाँ जाना है और क्या करना है। इनमें ज़र्रार बिन अल अज़वर भी थे। उन्हें उन 10 आदमियों का कमांडर मुकर्रर किया गया। मशहूर मौरिख वाक़िदी ने ये वाक़या जरा मुख्तलिफ बयान किया है। वो लिखता है कि तय ये पाया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और वरदान की मुलाकात होगी। वरदान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दबोच लेगा और उसकी पुकार पर उसके 10 रूमी घात से निकलकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देंगे। 3 और मौरिखों ने भी ये वाक़या इसी तरह बयान किया है। वरदान ने अपने 10 आदमी रात के आखिरी पहर की तारीकी में घात लगाने के लिए भेज दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 10 आदमी उसी वक्त के लगभग भेज दिए। उसके साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा कि वो गुज़श्ता रोज की तरतीब से मैदानी जंग में खड़े हो जाएं और हमले के लिए तैयार रहें। वरदान ने मुसलमानों को जंगी तरतीब में आते देखकर जंगी तरतीब में हो जाने का हुक्म दिया और सुबह तुलू होते ही वो शाहाना जंगी लिबास में उस जगह चला गया जहां उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुलाकात के लिए बुलाया था। उधर से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। वरदान ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ अरब के बद्दू, तू और तेरे लोग अरब में भूखे मरते हैं और तू कैसर रूम की शाही फौज के मुकाबले में आ गया है। ओ लुटेरे, क्या मैं नहीं जानता कि तुम लोग वहाँ मुफलिसी की बदतरीन जिंदगी गुजारते हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गजबनाक आवाज में कहा, ओ रूमी कुत्ते, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, इस्लाम कबूल
कर ले या जिजिया अदा कर। वरदान ने झपट कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। वरदान ने अपने 10 आदमियों को पुकारा जो करीब कहीं छुपे हुए थे, आओ आओ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु कम ताकतवर तो थे नहीं, लेकिन वरदान भी ताकत में कुछ कम न था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत जोर लगाया कि वरदान से जरा सा आजाद हो जाएं ताकि तलवार न्याम से निकाल सके, लेकिन कामयाब न हो सके। उन्होंने देखा कि 10 रूमी अपनी फौजी वर्दियों में उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। उन्हें तवक्को थी कि ज़र्रार और उनके 9 मुजाहिदीन ने घात वाले 10 रूमियों को खत्म कर दिया होगा, मगर वो 10 के 10 जिंदा चले आ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि ज़र्रार और उनके मुजाहिदीन रूमियों के हाथों मारे गए हैं या बर वक्त नहीं पहुंच सके। रूमी जो करीब आए तो एक ने खौद, जिर्रा और कमीज उतार कर फेंक दी और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि ये तो ज़र्रार है। उन्होंने बाकी 9 को करीब से देखा तो वो उनके अपने ही मुंतखब किए हुए मुजाहिदीन थे। ये मजाक ज़र्रार बिन अल अज़वर ने किया था। उन्होंने घात में बैठे हुए रूमियों को बड़े इत्मीनान से कत्ल कर दिया था, फिर उनकी वर्दियां उतार कर पहन ली। उन्हें मालूम था कि वरदान पुकारेगा। वो वरदान की पुकार पर निकल आए। वरदान खुश हो गया कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है। ज़र्रार ने तलवार निकाल कर कहा, पीछे हट इब्ने वलीद, ये मेरा शिकार है। वो वरदान की तरफ बढ़ने लगे। वरदान ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, कसम है तुझे उसकी जो कोई भी तेरा माबूद है, मुझे अपनी तलवार से खत्म कर और इस शैतान को मुझसे दूर रख। ज़र्रार ने अपनी एक दहशतनाक मिसाल कायम कर रखी थी। वरदान ने ज़र्रार को जाती मुकाबलों में रूमियों को काटते भी देखा था। उसे डर था कि ज़र्रार उसे अजियत दे देकर मारेगा। उसके लिए अब भाग निकलना नामुमकिन था। वो चाहता था कि उसे जल्दी मार दिया जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़र्रार को इशारा किया और हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। ज़र्रार ने अपनी तलवार खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी। वरदान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के एक ही वार से वरदान का सर जमीन पर जा पड़ा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ रुके नहीं, फौरन अपनी फौज तक पहुँचे और हमले का हुक्म दे दिया। ये हमला भी गुज़श्ता रोज की मानिंद था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कल्ब और दोनों पहलुओं के दस्ते को एक ही बार हल्ला बोलने का हुक्म दिया। उन्होंने 4000 मुजाहिदीन का महफूजा, जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे, पीछे रखा। मुसलमान हमला करते और पीछे हट आते थे और फिर हमला करते थे। रूमी तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका सालार आला उनमें नहीं था। उनकी जगह उनका सालार कुबकुलार कमान कर रहा था। रूमी जमकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के हमले गजबनाक थे। उनके सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। खुद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु सालार से सिपाही बन गए। रूमी सालार लड़ा नहीं करते बल्कि हुक्म दिया करते थे, लेकिन उस मार्के में वो मुसलमान सालारों की देखा देखी सिपाहियों की तरह लड़ने लगे। जंग की शिद्दत और खूंरेजी बढ़ती चली गई। दोनों तरफ कोई चाल नहीं चली जा रही थी। ज्यादा नुकसान रूमियों का हो रहा था। उनका लश्कर तह दर तह था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सोचकर इतना शदीद हमला करवाया कि दुश्मन का सालार आला मारा जा चुका है, और मुजाहिदीन ये देखकर ताबड़तोड़ हमले करते थे कि रूमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे में फंस कर रह गए हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हमले का एक और मरहला शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए वो मौजूद मौका देख रहे थे। चंद घंटों के बाद उन्हें ये मौका मिला। दोनों फौजें थक गई थीं। रूमियों को पता चल गया था कि उनका सालार आला उनमें नहीं, अलबत्ता दूसरे रूमी सालार पूरे जोश खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4000 नफरी के महफूजा को, जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे, दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताजा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए इतने बेताब के नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके और सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रूमियों की सफों के अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रूमियों के सालार कुबकुलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो वरदान का कायम मकाम था। पहले बताया जा चुका है कि उसने वरदान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया कि मुसलमान रूमियों पर गालिब आ जाएंगे। वरदान ने उसे डांट दिया। मौरिख तबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कुबकुलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था। वो तो जंग से लाताल्लुक खड़ा। उसने अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपेटा हुआ था कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थीं। उसके मुहाफिजों ने बेदिली से मुकाबला किया, शायद इसलिए कि वो अपने सिपाह सालार को नीम मुर्दा समझ रहे थे। उन्हीं से पता चला कि ये है कुबकुलार। मुजाहिदीन ने उसे उसी हालत में कत्ल कर दिया। बाज मौरिखों ने ख्याल जाहिर किया है कि कुबकुलार ने अपनी आंखों पर इसलिए कपड़ा डाल रखा था कि वो अपने लश्कर का कत्लेआम नहीं देख सकता था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी गई थी।
रूमियों का मरकजी परचम गिर पड़ा। मुजाहिदीन अब ये नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम, हमने रूमियों के दोनों सिपाह सालारों को कत्ल कर दिया है। रूमियों, तुम्हारा परचम कहाँ है? शहंशाह हरकल को बुलाओ। रूमियों, तुम्हारी सलीबें और झंडे कहाँ हैं? मुजाहिदीन इस्लाम तो अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अकीदे की खातिर लड़ रहे थे, लेकिन रूमी जिनके हुक्म से लड़ रहे थे वो मारे जा चुके थे। मुजाहिदीन के पास ईमान की कुव्वत थी, वो जादू की तरह रूमियों पर गालिब आ गए। रूमी भागने लगे। उनमें से कुछ बैतुल मुकद्दस की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ गजा और बाज याफा की तरफ। रूमियों की जंगी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवार दस्तों को हुक्म दिया कि भागते दुश्मन का ताकुब करें और किसी को जिंदा न छोड़ें। वो एक इबरतनाक मंजर था। रूमी जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और मुसलमान सवार उनके ताकुब में जाकर उन्हें बर्छियों में पिरो रहे थे। उन रूमियों ने अपनी तादाद पर भरोसा किया था। शराब के नशे को वो अपनी ताकत समझे थे। उन्होंने मुसलमानों को गरीब और नादार समझकर उन्हें 1 दीनार पेश किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा था कि तुमसे दीनार तो हम ले ही लेंगे। अब उन रूमियों को कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। उनका मैदान जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना मैदान जंग से भागते वक्त हुआ था। उनमें से खुशकिस्मत वो थे जो बैतुल मुकद्दस पहुंच गए और शहर में दाखिल हो गए थे। ये कत्लेआम उस वक्त रुका जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा इतना कि सवारों को अपने घोड़ों के सर नजर नहीं आते थे। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खैमे में थे। उन्हें बताया गया कि दाऊद नाम का एक ईसाई अरब उनसे मिलने आया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नाम सुनते ही बाहर को दौड़े, उसे गले लगाकर बोले, खुदा की कसम दाऊद, तूने मेरी फतह आसान कर दी है। कोई भी इनाम काफी नहीं हो सकता जो मैं तुझे दूं। कहाँ हैं तेरे बीवी बच्चे? किसी ने उन पर हाथ तो नहीं उठाया? दाऊद ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, मैं कोई इनाम लेने नहीं आया, मुझे इनाम मिल चुका है। देख मैं जिंदा हूँ और मेरा सारा खानदान जिंदा है। अब एक इनाम मुझे ये दे कि ये राज तेरे सीने में रहे कि मैंने तेरी कुछ मदद की थी। रोम की शहनशाही जिंदा है, अभी तो तू इस शहनशाही में दाखिल हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरा राज कैसर रूम तक नहीं पहुंचेगा और खुदा की कसम तू माल गनीमत के हिस्से का हकदार है। मैं तुझे हिस्सा दूंगा और तू जो मांगेगा दूंगा। चंद रोज बाद मदीना में ईद जैसी खुशियां मनाई जा रही थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा था कि 3 गुना ताकतवर रूमियों पर किस तरह फतह हासिल की गई है, जिसमें 50,000 रूमी हलाक हुए हैं। उसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 450 थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये खत पहले मस्जिद में पढ़कर सुनाया गया, फिर मदीना की गलियों में लोगों को इकट्ठा करके सुनाया गया। लोग एक दूसरे से बगलगीर हुए। मदीना फतह मुसर्रत के नारों से गूंजने लगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को ये भी लिखा कि अब वो दमिश्क को मुहासरे में लेंगे, जो शाम का यानी रोम की शहनशाही का बड़ा ही अहम शहर है। रोम की शहनशाही बहुत वसी थी। जब मदीना और गिरदोनिवाह के लोगों को ये खबर मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रोमियों पर एक फतह हासिल करके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई मुसलमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इनमें अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो मशहूर शख्सियत थे। वो अपनी बीवी हिंद के साथ रवाना हो गए। 1352 साल पहले माह अगस्त के एक रोज जब मदीना में मुसलमान अजनादीन की फतह पर खुशियां मना रहे थे, मदीना से दूर बहुत दूर शुमाल में रोम की शहनशाही के एक अहम शहर हम्स पर खामोशी और मातम की स्याह काली घटा छा गई थी। रूमियों के शहनशाह हरकल के महल में कहर और गजब की आवाजें गरज रही थीं। बसरा की शिकस्त की खबर लेकर जाने वाला कासिद अगर वहाँ से खिसक न आता तो हरकल गुस्से में उसका सर काट देता। शहनशाह हरकल ने गजबनाक आवाज में पूछा, हमारे सिपह सलार वरदान को क्या हो गया था? उसे कांपती आवाज में जवाब मिला, मारा गया है। उसने पूछा, और वो कुबकुलार? वो कहता है कि मेरी तलवार की हवा से ही दुश्मन कट जाता है। बताया, वो भी मारा गया है। उसने पूछा, और फामूस? बताया कि वो लड़ाई से पहले जाती मुकाबले में मारा गया था। शहनशाह हरकल ने उन तमाम सालारों के नाम लिए जो अजनादीन की लड़ाई में शामिल थे और जिनकी बहादुरी और जंगी क़यादत पर उसे भरोसा था। उसे यही जवाब मिला कि मारा गया है या शदीद जख्मी हो गया है। वो सब हलाक या जख्मी नहीं हुए थे, उनमें से बाज भाग गए थे। हरकल को बताया गया कि और अब मुसलमान दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना